Thank you. Before we start this webinar, I request you all to type in any questions, queries that you would have related to, the topics that we will be discussing in this webinar in the Q&A section, and we will be able to answer that real time. So I'll quickly start with sharing my screen. Second. Utkarsh, just let me know if my screen is visible, okay? Yeah, perfect. Nelson, you can go ahead. Great. So just a heads up, this webinar is divided into two parts. One is the onboarding deck that I will be covering. And then there will be a second part, which is the dashboard walkthrough, which my colleague Utkarsh will be taking it over. Like I said, at any time of this webinar, if you have a question or a concern, you can just type it in the Q&A section. And just in case, if you're not comfortable, asking your questions real time, you can always write in your queries to boosupport@goquick.com, and we'll be happy to answer those as well. Thank you. So the agenda for today is introduction of GoQuick Merchant Success Team, where we'll have a quick introduction about our team. Then we will also talk about your commercial settlement details. We have few key considerations. We'll discuss about quick flows and RTO features, your channels of communication. And the second half of the webinar will be a dashboard walkthrough, where we will have to go through with a walkthrough of the entire GoQuick dashboard that you currently see or you have access to. Great. So I'll quickly bring your attention to Annexure 1 of your GoQuick agreement. So if you have received your agreement, you can just scroll to Annexure 1, where you will see a mention of all the commission rates mentioned for individual payment methods. So you will see, for UPS specific commission rate is determined for COD, for credit card. So all the rates are determined there. And you can always refer to Annexure 1, where you'll find all this information. If you need more clarity or you want a clearer understanding, you can always click on this finance and voting button, which is on the bottom right side of the screen. We'll also be sharing this deck with you so that you can access this at any time that you would need. Moving on. Now for GoQuick, your orders are considered for COD until unless there are two conditions which is satisfied. Uh, just 1 second, please. Just give me 1 second. Yeah, in the meantime, team, please share your preferable language as well, okay? In which language you are comfortable, and accordingly, we can go ahead with this session. That will be really helpful for us. So please share your language preference in the Q&A section. Great. I'll just take a few seconds here. Don't mind. Yeah. Also, if you will be facing any issue, any confusion, okay, no issues. So, Nelson, please go ahead in Hindi language only, okay? ठीक है मैं हिंदी में प्रोसीड करूंगा ठीक है बाकी और preferences please if you are having any preferences please do let us know and कुछ भी confusion रहता है as in between session के तो please feel free to put your questions हम questions in between और end of the session ले लेंगे so don't worry about it. एग्जैक्टली और जैसे मैंने बताया कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस सेशन में अपने क्वेश्चन को पूछने में यू कैन ऑलवेज मतलब हमारे हु सपोर्ट को आप लिख सकते हो और वहां पर आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया जाएगा अ, ठीक है उत्कर्ष आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन मेरे को बता देना ठीक अगर है मैं स्क्रीन इज विजिबल sure. ठीक है सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट ये बिलिंग डिटेल्स सो क्या होता है विद कुकवे अगर आपका ऑर्डर्स 7 डेज से पहले या फिर बिफोर शिपमेंट कैंसिल नहीं होता है देन कुकवे इस ऑर्डर को आपके जो भी रेट्स डिटरमाइंड है उसे कंसिडर कर लिया जाता है विच मीन्स अगर आपको कोई भी ऑर्डर चाहते हो कि आप बिल नहीं हो आपको 7 दिन से पहले वो ऑर्डर कैंसिल करना होता है या फिर बिफोर इट इज शिप्ड
सेकंड, अगर आप पीपीसीओडी यूज कर रहे हो, पीपीसीओडी का मतलब ये होता है पार्शियल पेमेंट्स, जहां पर आप एक प्रीपेड अमाउंट पहले ऑर्डर शिप होने से पहले आप कलेक्ट कर लेते हो राइट अवे फ्रॉम द कस्टमर, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आप सीओडी में कलेक्ट करते हो। तो क्या होता है, जो प्रीपेड अमाउंट आप जो इनिशियली कलेक्ट करते हो वो आपके प्रीपेड रेट्स पे डिटरमाइन होता है। जो रिमेनिंग अमाउंट आप सीओडी के लिए कंसिडर करते हो वो सीओडी रेट्स के लिए डिटरमाइन होता है। क्या रेट्स है मैंने आपको पहले बता रखा है, वो आपके कमर्शियल्स में मेंशन रहा होगा एनेक्सर 1 में। मूविंग ऑन नाउ, अगर आप कमर्शियल्स देखोगे अपने एनेक्सर 1, आपको एक स्पेशल चीज मेंशन रहेगा वहां पर, विच इज अ प्लेटफॉर्म फी। प्लेटफॉर्म क्या होता है? अ प्लेटफॉर्म फी इज अ फी चार्ज एज पर अग्रीड कमर्शियल टर्म्स, एंड ये फी आपको क्लियरली आपके इनवॉइस में दिखा जाएगा। इसके अलावा लाइक प्लेटफॉर्म फी के अलावा और कोई एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स और बिलिंग प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होता है, बट ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म फी जो गूगल आपको चार्ज करता है। अगर इसके अराउंड कोई क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट टाइप इट इन द Q&A और हम आपको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स दो प्रकार के होते हैं विद गूगल, एक होता है प्रीपेड सेटलमेंट्स और एक होता है सेम डे सेटलमेंट। नाउ प्रीपेड सेटलमेंट्स में क्या होता है, प्रीपेड सेटलमेंट्स बाय डिफॉल्ट आपको प्रीपेड सेटलमेंट्स गूगल ऑफर करता है, जहां पर आपके सेटलमेंट्स T+1 या T+2 डेज में होता है। नाउ टी का मतलब ये होता है जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। सेकेंडली, आपके जो इनवॉइस होते हैं एवरी मंथ 7th ऑफ एवरी मंथ जनरेट होते हैं। सो January 7, February 7, एवरी मंथ ऑफ 7 को ही जनरेट होता है। नाउ नॉर्मल केसेस में जैसे मैंने आपको बताया T+1 और T+2 सेटलमेंट्स होते हैं। हाउएवर, अगर आप गोको एक अलग फीचर ऑफर करता है आपको विच इज कॉल्ड सेम डे सेटलमेंट। उसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सेम डे सेटलमेंट्स ऑप्ट इन करते हो तो आपको 0.2% एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। बट अगर आप करते हो तो उसमें आपको T+1 या T+2 डेज के लिए रुकना नहीं पड़ता है। वहां पर सेम डे होता है। इनफैक्ट आपको 4 सेटलमेंट्स पर डे ऑन वीकेंड्स होता है, वीकडेज होता है, और 2 सेटलमेंट्स पर डे ऑन वीकेंड्स एंड ऑन हॉलीडेज होता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप सेम डे सेटलमेंट्स के लिए ऑप्ट इन करते हो आपको 0.2% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। Now, along with that, all GoQuick invoices, including COD invoices, are auto-deducted from your settlements with corresponding invoices shared accordingly. मतलब कि अगर कोई भी आपका इनवॉइस ओवरड्यू होता है तो वो ऑटो डिडक्ट हो जाता है आपके सेटलमेंट से। ऑल्सो, अगर कोई प्राइस चेंज होता है तो दोनों पार्टीज से, विच इज GoQuick एंड यू एज अ मर्चेंट, दोनों पार्टी से सिग्नेचर या साइन अडेंडम होना चाहिए, तभी जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। Now, few considerations. WooCommerce does not provide step-by-step funnel analytics after integration, but our checkout analytics keeps you on track. इसका मतलब ये क्या होता है कि WooCommerce में अगर आप देखते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप फनल एनालिटिक्स नहीं दिखाता है। व्हाट आई मीन बाय स्टेप बाय स्टेप फनल एनालिटिक्स, कि कितने लोगों ने आपका चेकआउट क्लिक किया, कितने लोग आगे स्टेप पे गए, कितने लोग ने पेमेंट सेलेक्ट किया, कितने लोग ने एक्चुअली कंप्लीट किया वो पूरा ट्रांजैक्शन। बट GoQuick में ये हम दिखाते हैं। जब उत्कर्ष डैशबोर्ड को वॉक थ्रू करेगा, वी विल स्पेसिफिकली कवर अबाउट दिस फनल एनालिटिक्स, जहां पर आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा था स्टेप बाय स्टेप फनल एनालिटिक्स। सेकेंडली, फॉर अबैंडन कार्ड आपको एक वेबहक यूआरएल देना पड़ता है जहां से आपका अबैंडन कार्ड पुश होता है। वो भी उत्कर्ष दिखा देगा कि हम कहाँ पर आपको वेबहुक हम जो मांगते हैं वो आप कहाँ पर डाल सकते हो, और आप खुद भी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये डैशबोर्ड ट्रेनिंग में कवर होगा। थर्डली, आप जैसे आप वो कॉमर्स यूज करते हो, वो कॉमर्स में तो आप डिस्काउंटिंग यूज कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोकवे के साथ भी डिस्काउंटिंग एंड शिपिंग यूज कर सकते हो। और अगर आप यूज करते हो तो लेटेंसी कम होता है। क्या होता है, आप अगर उसमें कर रहे हो, गोके के साथ डिस्काउंटिंग एंड शिपिंग कर रहे हो, तो एपीआई इंटरचेंज लेस होगा और सेम डैशबोर्ड में रहेगा, तो वो थोड़ा स्पीड अप करेगा प्रोसेस को। But this is again an optional thing. If you want, you can use it. If not, you can still continue using the WooCommerce thing. Lastly, ये जो आपका गूगल का प्लगइन होता है, हम हमेशा इनकरेज करते हैं आपको कि सबसे लेटेस्ट वर्जन में यूज करें। सो अभी जो हमारा करंट वर्जन है विच इज 1.1.9, बट ये जो आप गिटहब का लिंक देख रहे हो ये एक हाइपर लिंक है। इसमें आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सारे वर्जन्स दिख जाएंगे।
हम जस्ट इंश्योर करते हैं कि आप सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज करें। लाइक आई सेड, ये डेक मैं आपके साथ शेयर करूंगा आफ्टर दिस वेबिनार। सो आप हमेशा चेक कर सकते हो कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो या नहीं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू नॉट रिमूव योर पेमेंट गेटवे फ्रॉम WooCommerce नेटिव चेकआउट एज इट एक्ट्स एज अ फॉलबैक। जिसका मतलब ये होता है, uh, हाँ, इसका मतलब ये होता है कि हम रेकमेंड नहीं करेंगे आपको कोई अपना ये पेमेंट मेथड को हटाने, बिकॉज अगर जस्ट इन केस अगर कुछ फेलियर होता है तो आपका नेटिव चेकआउट will act as a fallback. Utkarsh, please keep a track if there's any questions coming in so that we can, answer Definitely, that. definitely. Thank you. Moving on, ये सारा हम थर्ड पार्टी, these are like some of the third party plugins that we support. For abandoned cart हम कार्ड abandon recovery support करते हैं। वॉलेट्स के लिए हम टेरा वॉलेट सपोर्ट करते हैं। और कस्टम ऑर्डर नंबर फॉर गो कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस का प्लगइन सपोर्ट करते हैं। नाउ क्विक क्लोज। क्विक क्लोज क्या होता है? क्विक क्लोज एक एक सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी चीज को अचीव करना है and मैं नहीं अचीव कर रहा हूँ, तब मैं क्विक क्लोज को यूज करता हूँ। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कि मुझे फॉर एग्जांपल अंडमान या लद्दाख से बहुत ज्यादा सीओडी ऑर्डर्स आ रहे हैं। और मुझे नहीं, मेरा आरटीओ बहुत ज्यादा हाई है। तो मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफिक टू अ पिन कोड और स्पेसिफिक टू अ सिटी और मे बी अ स्टेट मेरे को सीओडी ब्लॉक करना है। तब मैं आके क्विक फ्लो यूज करूंगा। क्विक फ्लो जस्ट नॉट सीओडी ब्लॉक करने के लिए मुझे स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करना है, मुझे स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करना है, स्पेसिफिक एड्रेस को टारगेट करना है, तो मैं क्विक क्लोज यूज कर सकता हूँ। क्विक क्लोज इज लव एंड ट्रस्टेड बाय मोर देन 150 WooCommerce ब्रांड। जैसे मैंने आपको बताया, SKU स्पेसिफिक सीओडी पॉलिसीज है, सीओडी फी टेस्टिंग है, पैन इंडिया सीओडी रोल आउट है, मिटिगेटिंग ऑफ सीओडी रिस्क है, सर्विसेबल पिन कोड स्ट्रेटजीज है, यूपीआई डिस्काउंट भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स है क्विक क्लोज जो हम क्विक क्लोज की तरह अचीव कर सकते हैं। क्विक क्लोज इन डिटेल अभी उत्कर्ष आपको बताएगा जब वो डैशबोर्ड कवर करेगा कि हम कैसे सेटअप करते हैं क्विक क्लोज ऑन डैशबोर्ड, and which will give you more clarity as to what I'm talking about. Now, we also talk about RTO features. Now, one of the reasons, you might have chosen Go Quick is आपको RTO reduce कराना है। Now, RTO हम कैसे reduce करा सकते हैं? पहला ऑप्शन है सीओडी ब्लॉकिंग। जैसे अभी मैंने बताया कि आपने आइडेंटिफाई किया मे बी अंडमान से या लद्दाख से आपको बहुत ज्यादा सीओडी आरटीओ हाई है। तो आप क्या चाहोगे? आप उस स्पेसिफिक एरियाज में आप सीओडी देना ही नहीं चाहते। तो हम सीओडी क्विक फ्लो से सेटअप कर सकते हैं। जब एक यूजर आपके पेमेंट पेज पे आएगा तो वो सीओडी का ऑप्शन ग्रेड आउट रहेगा, जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हो। सेकेंड इज कॉन्फर्मेशन प्रॉम्प्ट। नाउ ये बेसिकली, तो नॉर्मल केस में क्या होता है, यूजर का जर्नी आता है पेमेंट्स पेज पे, सीओडी क्लिक करता है एंड ऑर्डर गेट्स कंफर्म्ड। तो जब हम ये कॉन्फर्मेशन प्रॉम्प्ट डालते हैं, उससे क्या होता है, एक प्रॉम्प्ट आ जाता है लिखकर, जैसे आप राइट साइड पे देख रहे हो, योर सीओडी ऑर्डर विल बी प्लेस्ड, आर यू श्योर, कंफर्म, सेव 10% विद यूपीआई। और जब ये कंफर्म करेगा तब जाके ऑर्डर कंफर्म होगा। सो बेसिकली एक अलग लेयर ऑफ फ्रिक्शन है जहां पर हम ये डालते हैं। नाउ आप देख रहे हो सेव 10% विद यूपीआई। नहीं, ये क्या होता है, अगेन टू रिड्यूस आरटीओ हम क्या चाहते हैं कि आपका प्रीपेड शेयर हमेशा ज्यादा रहे। जितना ज्यादा प्रीपेड कन्वर्जन रहेगा उतना इवेंचुअली आरटीओ कम होगा। सो रादर देन ऑप्टिंग फॉर सीओडी, हम यहाँ पर फर्दर एनकरेज करते हैं कि अगर आप प्रीपेड लाइक यूपीआई पे जाओगे तो आपको 10% एडिशनल सेविंग्स होगा। यू वांट टू डू दैट, सो दैट इज अनदर वे टू इंक्रीज योर प्रीपेड परसेंटेज। मूविंग ऑन, हम सीओडी में एक फी ऐड कर देंगे कि कोई भी अगर सीओडी सेलेक्ट करेगा एज अ पेमेंट ऑप्शन, दे हैव टू पे एन एक्स्ट्रा फी। सो अगर आप लेफ्ट हैंड स्क्रीन में देख रहे हो, तो 49 रुपीज सीओडी फी बीइंग एडेड अगर कोई सीओडी सेलेक्ट करेगा। सिमिलरली, अगर कोई यूपीआई सेलेक्ट करेगा तो उसको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया, 10% डिस्काउंट सेलेक्टिंग यूपीआई मेथड। यहाँ पर हम फ्लैट 50 रुपीज ऑफ दे रहे हैं। सो अगेन हम क्या करना चाह रहे हैं कि मतलब प्रीपेड शेयर बनाना चाह रहे हैं कि इवेंचुअली आरटीओ रिड्यूस हो जाए। नाउ सिमिलर टू सीओडी कॉन्फर्मेशन, तो हम जैसे मैंने आपको बताया, एक सीओडी कैप्चा होता है। सीओडी कॉन्फर्मेशन में क्या था, यस नो था, बट यहाँ पर एक कैप्चा आ जाएगा जहाँ पर आपके यूजर को एक नंबर या फिर एक प्रॉम्प्ट एंटर करना पड़ेगा, तभी जाके ऑर्डर कंफर्म होगा। यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको बताया, पे ऑनलाइन नाउ पे एक ऑप्शन देते हैं टू इंश्योर कि यूजर प्रीपेड पे रीडायरेक्ट हो जाए। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द वेज
वी ऑल्सो हैव पीपीसीओडी। पीपीसीओडी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक पूरा अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2159 का ऑर्डर है, हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि आप डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर ब्रांड वांट्स टू कलेक्ट, आप 100 रुपीज, 500 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दैट यू वुड लाइक टू सेट, आप एक अमाउंट सेट कर लोगे एंड वो अमाउंट इनिशियली आप कलेक्ट कर लोगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया वो आप सीओडी पे कलेक्ट करोगे। सो इससे क्या होगा, आपका जो मे बी अगर आरटीओ होता भी है, तो आपका एटलीस्ट शिपिंग ऑन अदर कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, बिकॉज दैट prepaid amount जो कलेक्ट कर रहे हो, that's a non-refundable amount. So that's another way to reduce your RTO. Now we have the following channels of Who support. तो ये जो आप ऊपर ऑरेंज में देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, that's our 24/7 WhatsApp channel that you can just connect with us. जैसे मैंने बताया, that is a 24/7, which means even at night at 2 p.m., 2 a.m. at the night, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, you can just connect on that and we are happy to help you there. Otherwise, your second line of channel is non-Shopify biz support at goquick.co and boo support at goquick.com. तो आप कोई भी concerns है उस इस email पे लिख सकते हो. And we also have our numbers, which is your emergency CSM contacts, and you can just reach out to us on WhatsApp or through call. लास्टली, अगर कुछ ऐसा कंसर्न है जहां पर अब आप देख रहे हो कि आपने एक क्वेरी रेज किया बट द टीम हैज नॉट रिस्पॉन्डेड, या फिर कुछ डिले हो रहा है, यू कैन ऑलवेज एस्केलेट द मैटर by writing it to our manager, which is Supriya De. You also have her email address, which is supriyade@goquick.co, so that you can escalate it and that can be addressed immediately. This only talks about the WooChat support जो मैंने अभी बताया आपको. That's a 24/7 helpline. So कोई भी questions है, कुछ भी queries है, जब आप type करो and the bot will be able to answer you real time. The best part is this is available 24/7. तो आप कभी भी access कर सकते हो. So that's on the onboarding deck side. Like I said, मैं आपको ये link share करूंगा and we'll just take a minute of your time and then we'll start with the dashboard walkthrough जो कि Utkarsh will take it over. Over to you, Utkarsh. Yeah, thanks a lot, Nelson. It was a great introduction. Now I'll be going ahead, okay? In the meantime, please, I would request that नेल्सन लाइक फॉर्म हमने अभी शेयर कर दिया है, अभी नहीं किया है? नहीं, अभी तक हमने शेयर नहीं किया है. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन टर्म्स ऑफ जो अभी डेक प्रेजेंटेशन हुआ फ्रॉम नेल्सन सेंड, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क. कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो यू मे आस्क. और अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा देर से ज्वाइन किया है सेशन, तो डोंट वरी, इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा. बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि पूरा सेशन आप अटेंड कीजिए. इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड इन दैट सेंस. लाइव सेशन ज़्यादा सही रहता है और आप पूछ सकते हैं. एंड एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ इन द मीन टाइम, एंड देन वी कैन गो अहेड विथ अवर. प्लीज कंफर्म इफ माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू. Yes, of course it is. ग्रेट, थैंक्स थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन. ठीक है. सो देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बताया था आपको. मैं पूरा ट्रेनिंग स्क्रैच से ही लूंगा, एज इन डैशबोर्ड पूरा स्क्रैच से ही समझाऊंगा. तो कुछ भी अगर आपको इस पैनल पे ऐसा दिखता है जो आपके पैनल पे नहीं है, शो कर रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट. हो सकता है कि ये बेसिकली मास्टर डैशबोर्ड है, दैट इज वाई यहाँ पे सारा फीचर्स अवेलेबल दिखता है. आपका आपके प्लान के हिसाब से, आपके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपको शो करेगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट सेंस, ओके? ठीक है. सो एक बार मैं सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड जब लॉग इन करते हैं तो सबसे पहला जो पेज दिखता है दैट इज एग्जीक्यूटिव समरी. एग्जीक्यूटिव समरी आपको क्लियरली ये बस एक रिफ्लेक्ट कर देता है आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, चेकअप परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आरटीओ परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है. ठीक है. आप इसको फिल्टर आउट करके 3 डेज, 3 मंथ, 3 वीक्स का देख सकते हैं. जैसे देखिए, गोक्विक का सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि गोक्विक चेकआउट तो आप यूज करते ही करते हैं. चेकआउट तो आपका यूजर यूज कर ही रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस एक प्रोवाइड हो ही रहा है. साथ ही साथ चेकआउट के साथ आपको डेटा मिलता है, इन डिटेल डेटा मिलता है, जो आपको हेल्प करता है आपके ऑर्डर्स को और आपके परफॉर्मेंस को मैनेज करने में, इन टर्म्स ऑफ आरटीओ हो गया,
चेकआउट कन्वर्जन हो गया, ठीक है, एड्रेस प्रीफिल्ड रेट्स हो गया। आई होप मेरा वॉइस ब्रेक नहीं कर रहा है, प्लीज कंफर्म इफ माय वॉइस इज क्लियर। नहीं नहीं, वॉइस इज क्लियर होता है। ठीक है। सो चेकआउट परफॉर्मेंस हो गया, आरटीओ परफॉर्मेंस हो गया, इरिस्पेक्टिव किसी भी तरीके का डेटा आपको चाहिए तो वो आपको ये डैशबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज वाई वी कॉल इट एज कंप्लीट चेकआउट इनेबलमेंट। ओके, हम सिर्फ चेकआउट इसको नहीं बोलते हैं, प्रॉपर आपको डैशबोर्ड में सब कुछ शो करता है। तो अगर आपको एक ओवरव्यू भी लेना है ग्राफिकल फॉर्म में, एक बार फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे दिखता है। अगर आप फिल्टर लगाएंगे 3 डेज, मंथली एंड वीकली, तो आपको एक चेकआउट परफॉर्मेंस दिख जाता है कि डिक्लाइन हुआ है वीक ऑन वीक, या उसमें एक राइज हुआ है। ठीक है, तो वो आप जीएमवी लेवल पे, ऑर्डर लेवल पे आप देख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, फिर सेम इन विद द आरटीओ परफॉर्मेंस, अगर आपको अपना आरटीओ देखना है, सी इवेंचुअली द गोल इज टू कंट्रोल द आरटीओ। आरटीओ कंट्रोल करना हैज टू बी अवर, मतलब शुड बी अवर टारगेट, कि कैसे आरटीओ को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। फिर अगर आप कोई गूगल एनालिटिक्स अगर यूज कर रहे हैं या फिर यूज करना चाहते हैं, तो यू कैन लेट अस नो, एंड यहाँ पे भी वो चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर। नाउ कमिंग टू द फीचर लॉन्चेस, फीचर लॉन्चेस में ऐसा कुछ नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना है कि आपको ये चेक रखना पड़ता है, जो भी डैशबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि फीचर लॉन्चेस में आप का क्या क्या आने वाला है, क्या क्या इनहेंस हो रहा है, क्या क्या बेटा लॉन्च में है, कौन कौन से इशू फिक्स हो रहे हैं, फीचर लॉन्च क्या क्या आने वाला है, वो सारा आपको एक अपडेट मिलता रहता है हमारे एंड से। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा न्यू दिखता है जिसके लिए यू आर वेरी मच क्यूरियस एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, सो यू आप एक बार हमसे पूछ सकते हैं, हमको एक बार शेयर कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव पीओसीज के थ्रू, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, हमारी टीम आपको उस पर एक हेल्प कर देगी, ठीक है। फिर डायरेक्टली मैं एक बार एडमिन में आ जाता हूँ। एडमिन में आने का देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि डैशबोर्ड आप अगर लॉग इन कर रहे हैं तो डैशबोर्ड आपके एंड से यूज कौन करने वाला है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपकी टीम में कौन कौन उसको यूज करेगा। अगर आपकी टीम में मल्टीपल लोग हैं उसको यूज करना चाहते हैं इस डैशबोर्ड को, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप अपने टीम मेंबर्स के यहाँ से एक्सेस क्रिएट कर दीजिए। इनवाइट टीम मेंबर्स पे जाइए, नेम डालिए, ईमेल डालिए, इस ड्रॉप डाउन से चूज रोल कीजिए उनका, जो भी रोल पे वो एज एन एप्लीकेबल है, और उनको एक इनविटेशन सेंड कर दीजिए। तो उसके बेसिस पे उनको ये डैशबोर्ड एक्सेसिबल रहेगा, लिमिटेड परमिशंस के हिसाब से वो एक्सेसिबल रहेगा, बिकॉज दिस इज द डैशबोर्ड विच यू मस्ट बी लॉग इन एज ऑफ नाउ। वो एक एडमिन रोल के हिसाब से तो सारा कुछ दिखने वाला है, ठीक है। अब एक बार हम रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। रिपोर्ट्स देखिए कैसा है, अगर मान लीजिए आपको एक, आप डैशबोर्ड ऑन अ डेली बेसिस या नहीं लॉग इन करते हैं, आप नहीं देखते हैं, और आपको एक वीक का या फिर एक मंथ का रिपोर्ट चाहिए, आपको बस रिपोर्ट एक बार गो थ्रू करना है या किसी को फॉरवर्ड भी करना है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में डायरेक्टली आप रिपोर्ट सेक्शन में आइए, और रिपोर्ट से आप यहाँ पे फिल्टर लगाइए डेट का, आप रिपोर्ट टाइप चुन लीजिए, ऑर्डर चाहिए ऑर्डर का रिपोर्ट, रिफंड का रिपोर्ट, सेटलमेंट्स का रिपोर्ट, अबेंडन कार्ड का रिपोर्ट, इधर इट कुड बी ट्रांजेक्शन, अगर कोई पेमेंट लिंक्स का है रिपोर्ट, तो आप जनरेट करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनरेट जब करेंगे तो यहाँ पे जनरेट होकर दिख जाएगा, जनरेटेड ऑन विच डेट, किसने जनरेट किया, जनरेटेड बाय होम, एज इन किस रिपोर्ट का है, जनरेटेड बाय होम, एंड देन आप उसको एक्शन के नीचे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्डर्स पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी रहता है कि ऑर्डर्स हम कैसे ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, आपका अगर कोई ऑर्डर प्लेस हो रहा है फॉर एग्जांपल किसी भी मर्चेंट के लिए, किसी भी सॉरी यूजर के एंड से, तो आपके वर्डप्रेस वूकॉमर्स पे तो वो डेटा रिसीव हो ही रहा है, बट उसका स्टेटस आपको गोक्विक पे भी एक चेक रखना इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि एक गोक्विक डैशबोर्ड अगर आप नहीं देख सकते तो अपनी टीम में से किसी ना किसी को इसका एक बार एक्सेस देके उनको मॉनिटर करने के लिए बोलिए, ताकि वो डेटा आपको यहाँ पे भी शो करे, क्योंकि एट द एंड सेटलमेंट आपको यहीं पे दिखने वाला है, कितना अमाउंट आपका सेटल हो रहा है आपके प्रीपेड ऑर्डर्स के बेसिस पे, कितने ऑर्डर्स कंफर्म हो रहे हैं, कितने ऑर्डर्स ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने लास्ट 7 डेज का डेटा देखना है, तो लास्ट 7 डेज का देखिए आप डेटा देख पा रहे हैं, मुझे ऑर्डर दिख रहे हैं, सारा ऑर्डर स्टेटस कंफर्म दिख रहा है। ये ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे कंफर्म दिखता है, दैट मीन्स कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है प्रॉपरली। अब वो ऑर्डर कैंसिल्ड हुआ है प्लेस होने के बाद या नहीं हुआ है, उसको अगर रीचेक करना है, इन दैट सेंस इन दैट सिनेरियो यू नीड टू क्लिक ऑन ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये ऑर्डर कंफर्म का मतलब है कि ऑर्डर कंफर्म हुआ है, उसके बाद उसका क्या एक्शन हुआ वो अंदर दिखाएगा, ठीक। क्रिएटेड ऑन विच डेट, क्या पेमेंट मोड था, पेमेंट स्टेटस क्या था, ग्रैंड टोटल, आरटीओ रिस्क। अब आरटीओ रिस्क होता क्या है, सो देखिए आरटीओ रिस्क डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में, हाई मीडियम लो। कैसे डिसाइडेड, हमारी आरटीओ जो इंटेलिजेंस है, जो आरटीओ इंटेलिजेंस का हमारा पूरा एआई सिस्टम है बैकएंड पे, वो
जो भी यूजर्स का बिहेवियर रहता है, कस्टमर्स का बिहेवियर रहता है, शॉपिंग बिहेवियर, उसके बेसिस पे उनको एक कैटेगरी असाइन होता है। कैटेगरी किस किस बेसिस पे असाइन होता है? एक डेसिबल एज इन जो डिसाइल लेवल होता है उसके बेसिस पे उनको असाइन किया जाता है कि उनका डिसाइल लेवल क्या होना चाहिए उनके बिहेवियर के हिसाब। फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन, लेट सपोज 10 साल से। अब 10 साल में मेरा जो शॉपिंग बिहेवियर रहा वो ऐसा रहा कि मैंने अपने 70-80% ऑर्डर्स को आरटीओ किया हुआ है। आरटीओ मतलब मैं जब आया डिलीवरी पे तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। भले मैं सेकंड अटेम्प्ट में मंगाता हूँ, मैं थर्ड अटेम्प्ट में रिसीव करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट वो एक 70% मेरा कैंसिलेशन का है टैग मेरे पास। ठीक। उस वजह से मेरे को आरटीओ रिस्क अगर टीम एनालाइज कर रही है, एआई सिस्टम मेरा डेटा चेक कर रहा है, अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे को चांसेस हैं कि हाई कैटेगरी में मार्क करके रखेगा, क्योंकि मेरे मेरे चांसेस रहते हैं कि आरटीओ हाई हो जाए। ठीक। नाउ आपको यहाँ पे एक कंट्रोल दिख रहा होगा, एक तो हाई हो गया, एक तो मीडियम हो गया, एक तो लो हो गया। एंड ये कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल, व्हाट इज दिस कंट्रोल मीन्स? सो ये कंट्रोल का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंट्रोल जो आरटीओ रिस्क है ये उन पे आता है जिन पे जो आरटीओ इंटेलिजेंस एआई सिस्टम है वो ट्रैक कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 साल से मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरा यूजर बिहेवियर था कि मेरा आरटीओ रिस्क हाई में हो जाए। ठीक। अब वो हर टाइम वो आरटीओ रिस्क हाई में तो नहीं रह सकता, या हमको मुझे वो सिस्टम बैकएंड सिस्टम हाई में तो नहीं रख सकता। हो सकता है कि मेरा आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 इयर्स मेरा बिहेवियर चेंज हो चुका हो, मैं ऑर्डर्स रिसीव करने लग गया हूँ। तो फिर भी अगर हाई में रखेगा आरटीओ रिस्क तो दैट वोंट बी फेयर विद मी, करेक्ट? तो उस केस में बैकएंड सिस्टम कुछ रैंडम यूजर्स को पिक कर लेता है जस्ट टू स्ट्रेंथन देयर एनालिटिक्स, लाइक जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने के लिए वो कुछ रैंडम पिक्स कर लेता है, उस पे वो आरटीओ मॉनिटरिंग चल रही होती है, एज इन उनके बिहेवियर की मॉनिटरिंग चल रही होती है कि क्या पहले अगर वो हाई में था तो क्या वो ऐसा तो नहीं था कि वो किसी जेन्युइन रीजन से वो ऑर्डर को रिफ्यूज करते थे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो वो रीचेक्स होते हैं। अगर लगता है उस सिस्टम को वापस से कि नहीं बिहेवियर सेम है जो पहले था, तो फिर उसको वापस से कंट्रोल से वो हाई में चले जाता है। और अगर लगता है कि नहीं बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं जो प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पे जिस वजह से मैंने इसको हाई में रखा था सिस्टम ने, अब सेम पैटर्न नहीं है, कुछ अलग है, सीओडी हो रहे हैं ऑर्डर्स, बट इस टाइम पे डिलीवरी एक्सेप्ट हो रही है, तो इस ऑर्डर को अब हम थोड़ा सा लो में रख देते हैं या मीडियम में कर देते हैं। तो कंट्रोल वो ऑर्डर्स हो गए कि जिन पे पहले कुछ बिहेवियर्स थे, उन पे आरटीओ एक रिस्क था, चाहे वो हाई हो चाहे मीडियम हो चाहे लो हो। अब सिस्टम चाहता है कि एक बार उनको री एनालाइज करे, चाहे ताकि अपना भी एक बार चेक कर पाए कि जो मैंने उनको रेटिंग दी थी वो सही है या गलत है, और उसके बेसिस पे उनको एक रीकैटेगराइज करे। रीकैटेगराइज में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लो था वो हाई हो जाएगा, जो हाई था वो लो हो जाएगा, नहीं, वो लो लो भी हो सकता है वापस से, हाई हाई भी हो सकता है वापस से। बस सिस्टम अपना स्ट्रेंथन करता रहता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि आप कुछ पढ़ते हैं, आप कुछ देखते हैं, तो आप रिवाइज करते रहते हैं, करेक्ट? जस्ट टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ। तो वो एग्जैक्टली कंट्रोल सिस्टम ही उस तरीके से काम करता है। कुछ रैंडम पिक्स होते हैं यूजर्स के, ठीक है? तो ये तो एक आरटीओ इसको समझने के लिए मैंने बस बता दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सिस्टम पे कंट्रोल दिख सकता है, तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज कि ये कंट्रोल का मतलब क्या है, हाई मीडियम लो तो समझ में आता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे। अब देखिए, ये ऑर्डर अभी भी इसका प्लेटफॉर्म ऑर्डर स्टेटस ब्लैंक है, दैट मीन्स कि ये जब आप वर्डप्रेस पे इस तरह के ऑर्डर्स देखेंगे तो प्रोसेसिंग में होंगे, मतलब उनको ना ही आपने कैंसिल मार्क किया है ना ही कंफर्म मार्क किया है, तो वो आपको प्रोसेसिंग में दिखेंगे अपने वर्डप्रेस पे। दैट इज वाई हियर ऑल्सो यू आर एबल टू सी एज ब्लैंक। ठीक है। जी ठीक है। अब एक बार आप बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर स्टेटस हो गया, फिर इसका कूपन कोड हो गया, प्रीपेड डिस्काउंट है, फिर इसका यूटीएम सोर्स डायरेक्ट है, किस सोर्स के थ्रू ये शॉपर आया है आपके पास शॉपिंग करने, पेमेंट टाइप क्या था, पेएबल अमाउंट क्या था, डिस्काउंट उस पर क्या एप्लीकेबल हुआ है, फिर इसका कस्टमर डिटेल्स जो राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं। सो कस्टमर डिटेल्स हमेशा देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखता है, और फोन नंबर ईमेल आईडी हमेशा मास्क रहता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है, सो यू यू वुड बी एबल टू व्यू दोज डिटेल्स, आप व्यू कर पाएंगे, व्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा आपके डैशबोर्ड में जब आप जाएंगे ना किसी ऑर्डर्स के अंदर, तो वो दिखेगा आपको, तो यू कैन चेक दैट।
बिलिंग डिटेल्स दिखता है, शिपिंग डिटेल्स दिखता है, आइटम्स क्या क्या हैं किसी ऑर्डर के लिए एडेड, पेमेंट उसका स्टेटस क्या है, यूपीआई है, प्रोवाइडर का नाम, स्टेटस, एवरीथिंग इज विजिबल इन डिटेल। ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर्स का आपको हिस्ट्री चेक करना है या स्टेटस चेक करना है तो यू कैन चेक इट। अब हम आ जाते हैं क्विक चेकआउट पे। क्विक चेकआउट पे सबसे पहले तो मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ। क्विक चेकआउट का मतलब ये गो क्विक चेकआउट, गो क्विक चेकआउट ही आप यूज कर रहे हैं, राइट। अब गो क्विक चेकआउट कैसा दिखना चाहिए, सिस्टम पे कैसा दिखना चाहिए। अगर आपका कोई चेकआउट है और कोई आपका यूजर को चेकआउट दिखाना है तो किस तरह से उसका लोगो हो, ठीक है, किस तरह से उसका थीम हो, उसका प्राइमरी थीम कलर क्या हो बैकग्राउंड पे, फोरग्राउंड पे, सेकेंडरी थीम कलर बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे क्या हो, तो किस तरह से कस्टमाइजेशन करना है, वो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो यू कैन डू दैट फ्रॉम योर सिस्टम, फ्रॉम योर डैशबोर्ड ऑल्सो। एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज कीजिए, करके देखिए होता कैसा, लगता कैसा, दिखता कैसा है, ताकि आपके ब्रांड के साथ वो मतलब मैच कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोपिक चेकआउट है और गोपी का कलर अगर येलोइश ऑरेंज ब्लू इस तरह के कलर से मिक्स करता है तो मैं चाहूंगा कि मेरा चेकआउट भी इसी थीम थीम कलर्स पे बेस्ड हो, राइट। सो इन दैट सेंस अगर व्हाट्सएप अपना चेकआउट लगा रहा है तो वो ग्रीन कलर पे जाएगा। तो वो थीम बेस्ड कस्टमाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो आई अपीलिंग रहता है, हमेशा अट्रैक्टिव रहता है यूजर के लिए, और यूजर एक ट्रस्ट, एक ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट क्रिएट होता है वो यूआई से ही बस। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मिंत्रा का शॉपिंग वो देखिए यूआई वर्सेस अमेजोन का आप देखिए, इन टर्म्स ऑफ, मैं सिर्फ क्लॉथ्स की बात कर रहा हूँ, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज की बात कर रहा हूँ, उस केस में आप देखिए लोग मिंत्रा ही प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस जो दिखता है यूआई पे, राइट। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना एक खुद का कस्टमाइज कीजिए, हिट एंड ट्राई करते रहिए, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से यू कैन कीप फॉर द यूजर्स, ठीक। अब लॉगिन पे आ जाते हैं। लॉगिन क्या होता है, देखिए, मैनेज द कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर। किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करने के सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, यूजर वेरिफिकेशन मेथड क्या क्या हो सकता है, मोबाइल एंड ओटीपी हो सकता है, ट्रू कॉलर वेरिफिकेशन हो सकता है, ओटीपी सेटिंग्स क्या क्या हो सकते हैं। ओटीपी मुझे इनेबल रखना है अपने गोक्विक न्यू न्यू यूजर्स के लिए या नहीं रखना है। गोक्विक न्यू यूजर्स क्या हुए, वो ऐसा यूजर जो गोक्विक नेटवर्क का मतलब क्या है कि मैं 10 साल से शॉपिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैंने उन्हीं वेबसाइट पे शॉपिंग किया है पिछले 10 साल में जिस पे गोक्विक चेकआउट लगा है, और या गोक्विक चेकआउट नहीं लगा है। सबसे पहली बात एक मजे की ये है इसमें कि गोक्विक चेकआउट आपको 97% वेबसाइट्स में दिखेगा, पहली चीज तो ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आपने वेबसाइट से शॉपिंग कर रखी है अपने पास्ट में तो गोक्विक आपको ना दिखे, वो दिखने ही वाला है। किसी भी आप टॉप ब्रांड्स को उठा के देख लीजिए, दे आर ऑलरेडी ऑन गोक्विक चेकआउट, सो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरा, उस केस में न्यू यूजर तो गोक्विक के लिए आप नहीं हुए। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई उसी तरह का यूजर आ रहा है, या मैं आपकी आफ्टर डूइंग शॉपिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स में आपके वेबसाइट पे जा रहा हूँ शॉप करने, तो मैं आपके लिए न्यू यूजर कंसिडर नहीं किया जाऊंगा। कोई बहुत ही रेयर सिनेरियो जहाँ पे यूजर शॉपिंग ही पहली बार वेबसाइट पे करने जा रहा है, उसके लिए डेफिनेटली वो गोक्विक का न्यू यूजर हुआ, तो उसके लिए ओटीपी जाना है नहीं जाना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं बाई इनेबलिंग और डिसेबलिंग दिस टॉगल, ठीक है। उसके बाद फिर आप ओटीपी सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। अगर आप चाहते हैं कि ओटीपी आपको व्हाट्सएप पे आए तो वो भी आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि कीप दिस ऑप्शन इज इनेबल्ड, बिकॉज होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए नेटवर्क में नहीं है तो टेक्स्ट मैसेज में कभी अगर इशू है भी तो आपको व्हाट्सएप पे ओटीपी आता है, अगर आपका काम हो जाएगा आप लॉगिन कर पाएंगे, यूजर लॉगिन कर पाएगा, तो एक आपको एक यूजर को एक एक ईज रहता है, हमेशा एक एज रहता है एज कम्पेयर टू वहां पे जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज का ही ऑप्शन है। फिर एड्रेस ऑटो ऑटो सजेस्ट है, मेक ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है। अब एड्रेस ऑटो सजेस्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए एड्रेस ऑटो सजेस्ट का मतलब बहुत सिंपल सा है। नोटिस किया होगा आपने, अगर कोई भी आप यूजर, कोई भी आप कहीं पे भी शॉप कर रहे हैं और अपना एड्रेस आप डालने की कोशिश कर रहे हैं और सजेशंस आने लग जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा कि पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सजेशन आ जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, राइट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोई एड्रेस डाल रहे हैं, आपने कुछ लिखा, आपने कोई भी एड्रेस डाला, ऑटोमेटिकली अगर एड्रेस मैच करके आ जा रहा है सजेशन में, दैट्स द बेस्ट पार्ट और बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन प्रोवाइड टू यूजर्स, तो ये हमेशा इनेबल रहना इज रिकमेंडेड, ठीक है। फिर मेक ईमेल एड्रेस ऑप्शनल, तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड बाई अस एज इन गोक्विक, बट स्टिल इफ योर बिजनेस रिक्वायर्स इट प्लीज इनेबल दिस कॉन्फ़िगरेशन। ऑफर एंड बेनिफिट्स में इनेबल अप्लाई डिस्काउंट यूआई। अब डिस्काउंट यूआई अगर आपको करना है तो इसको रीड ओनली, डिसेबल और इनेबल पे आप रख सकते हैं। इनेबल दिस इफ यू डोंट वांट यूजर्स टू अप्लाई रिमूव एनी कूपन्स ड्यूरिंग द चेकआउट। अगर आप सिर्फ पढ़ने के उस पे रखना चाहते हैं, इनेबल रखना चाहते हैं, तो वो आपका टोटल डिपेंडेंट रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
फिर हम पेमेंट्स में अब आ जाते हैं। अब हम पेमेंट्स पे अगर आते हैं तो पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कस्टमाइज है, कैसे कस्टमाइज करना है वो मैं आपको क्विक पेमेंट्स में दिखाऊंगा। अभी तो हम चेकआउट की सिर्फ बात करेंगे, चेकआउट का यूआई कैसा दिखना चाहिए, फ्रंट पे चेकआउट कैसा दिखे, उसके अंदर पेमेंट्स बाकी सब चीजें पेमेंट्स में आ गया, क्विक पेमेंट्स में आ गया, ठीक। जीके प्रीपेड, गो क्विक प्रीपेड डिस्काउंट एंड सीओडी फीस किस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर अप्लाई दैट क्विक फ्लो डिस्काउंट ओनली ऑन यूपीआई, इनेबलिंग क्विक फ्लो इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई प्रीपेड डिस्काउंट्स, ठीक है। अगर आप क्विक फ्लो यूज कर रहे हैं, जैसे नेल्सन ने भी क्विक फ्लो का मेंशन किया था, विच आई विल बी कवरिंग इन द लेटेस्ट सेक्शन ऑफ दिस सेशन, तो क्विक फ्लो क्या कब रिक्वायरमेंट रहता है, क्यों यूज करना होता है, हमें यूज करना भी है या नहीं करना है, क्यों, तो उस चक्कर में आप यूपीआई वहां पे क्विक फ्लो में लगा सकते हैं। इनेबल पेमेंट ऑफर्स, अगर आपको पेमेंट ऑफर्स रखना है ईएमआई के टर्म्स में, कैशबैक के टर्म्स में, किसी भी स्पेसिफिक बैंक, तो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्क फ्लो पे, ठीक। देखिए, स्किप टू पेमेंट्स क्या है, स्किप टू पेमेंट्स वो है कि आपका कोई गोक्यूब का रेपिटेटिव यूजर है, कोई रेपिटेटिव यूजर है, उसको आप डायरेक्टली पेमेंट पेज पे लैंड कराना चाहते हैं जस्ट आफ्टर एंटरिंग देयर मोबाइल नंबर, तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। बार बार आप यूजर पूरा चेकआउट से नहीं गो थ्रू करना चाहता है उस जर्नी से, राइट, उसको हो सकता है इरिटेशन हो, दे जस्ट वांट टू डू अ वेरी क्विक चेकआउट, तो उस केस में आप स्किप टू पेमेंट्स को इनेबल वन एड्रेस मल्टीपल एड्रेस के कर सकते हैं। सीओडी कंफर्मेशन मोड हमेशा ऑलवेज रखिए, बिकॉज यू नेवर नो, हर यूजर सीओडी ट्रांजेक्शन जेन्युइन ना करे, हो सकता है सीओडी ट्रांजेक्शन हुआ एंड ही और शी मस्ट बी थिंकिंग कि ठीक है ये ऑर्डर आएगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा या कर दूंगी करके, ठीक है, तो उस केस में ऑलवेज ऑन रखना इज रिक्वायर्ड, बिकॉज सीओडी ऑर्डर अगर प्लेस हो रहा है तो उस टाइम पे उनके स्क्रीन पे आ जाएगा ओटीपी, कंफर्मेशन मोड एक आ जाएगा, दैट विल हेल्प देम टू रीडिसाइड रिकंसिडर कि सच में उनको सीओडी ऑर्डर प्लेस करना है नहीं करना है, करेक्ट। वन क्लिक चेकआउट, दिस विल अलाउ द यूजर टू क्विकली मेक अ पेमेंट वाया लास्ट यूज यूपीआई आईडी। आपने भी नोटिस किया होगा, अलग अलग शॉपिंग पे जाते हैं, लास्ट यूपीआई आईडी आपको सेव करने के लिए बोलता है, वो सेव किया तो आपने नेक्स्ट टाइम पे यूपीआई आईडी आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आप बस क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए एंड डन, यू आर डन, करेक्ट। तो वन क्लिक चेकआउट भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फिर ओवरराइड पेमेंट मेथड्स, ओवरराइड पेमेंट मेथड देखिए तभी आपको एप्लीकेबल है अगर क्विक फ्लो इज इनेबल्ड, दैट्स इट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जेनरिक, जेनरिक कुछ जनरल सेटिंग्स हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्विक एग्जिट फीडबैक जो है क्वेश्चनर फॉर्मेट है। क्वेश्चनर फॉर्मेट का बहुत ही बड़ा सिग्निफिक बहुत सिंपल सा सिग्निफिकेंस क्या है, नोटिस किया होगा आपने कि जैसे कोई बटन शॉपिंग कर रहा है, चेकआउट पे है, अब उसको मन किया कि थोड़ी देर बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी ड्रॉप कर देते हैं, तो आइडियली तो वो कार्ड अबेंडन हो गया, अबेंडन कार्ड के डेटा में वो आपको दिख गया, ठीक है, वो अबेंडन कार्ट कर दिया है यूजर ने, किस स्टेज पे किया हो, जेन्युइन यूजर हो, बाद में शॉपिंग सच में करने वाला हो, कुछ काम आ गया हो, एक्स वाई जी कोई भी हो, बट जब वो टाइम पे वो चेकआउट बंद कर रहा है, तो उस टाइम पे क्वेश्चनर फॉर्मेट अगर आप चला देते हैं तो उससे एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि एक एक यूजर सोचता है कि यार चलो कर ही लेते हैं, कंफर्म कंप्लीट ही कर लेते हैं, हो सकता है कि उसका डिसीजन उसी एक मतलब एक बैरियर से एक स्मॉल बैरियर से चेंज हो जाए, तो दिस इज जस्ट अ आई वुड से अ ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिक है एक तरीके से फीडबैक क्वेश्चनर फॉर्मेट, दैट्स इट। और फिर बाकी एक डेटा भी मिल जाता है यूजर से टू इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर, so उस तरह से भी रहता है। अलाउ यूजर्स टू ऐड जीएसटी, आप ऑप्शन इनेबल रख सकते हैं। ये जो पार्ट है शिपिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑप्शन, इसको इनेबल कब रखना है डिसेबल कब रखना है, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब मैं क्विक ऑफर्स पे डिस्काउंट एंड शिपिंग पे जाऊंगा। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर आप वो कॉमर्स का शिपिंग और डिस्काउंट इंजन यूज कर रहे हैं पहले से ही, तो ये ऑप्शन डिसेबल रहना इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये इनेबल तब रहेगा जब हम क्विक ऑफर्स में हमारा डिस्काउंट एंड शिपिंग इंजन यूज करेंगे, विच इज गो क्विक्स डिस्काउंटिंग एंड शिपिंग इंजन, ठीक। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर रीट्राई फ्लो। अब ये ऑर्डर रीट्राई फ्लो क्या है, मान लेते हैं कि आपने ऑर्डर कोई प्लेस किया और वो गलती से फेल हो गया, हो सकते हैं कुछ भी रीजन हो सकता है, आपने पेज रिफ्रेश कर दिया हो, इन बिटवीन इंटरनेट लॉस हो गया हो, एक्स वाई जी कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इस पार्ट को अगर आपने इनेबल रखा है तो इनेबलिंग दिस विल रीट्राई द प्लेस ऑर्डर एपीआई फॉर 3 टाइम्स इन केस ऑफ फेलियर्स।
होता क्या है, बैकएंड पे तो एपीआईज चल रही है ना। सी दैट टेक्निकली अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो इट्स टोटली फाइन, मैं बस कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ ओनली। बस आपको एक सिंपल सा मान के चलते हैं, मैं सिंपल भाषा में एक बार समझा देता हूँ आपको कि होता क्या है कि बैकएंड पे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप क्लिक भी कर रहे हैं इस सिस्टम पे, तो बैकएंड पे इसका कोड लिखा हुआ है, वो एपीआई कॉल्स हो रही हैं, जिससे सिस्टम को पता लग रहा है कि कहाँ पे क्या क्लिक्स हो रहा है। जैसे कि वो कॉमर्स में आपने कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग में उसको कैंसिल मार्क किया, अब यहाँ पे ऑर्डर्स में आके वो कैंसिल सेव दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि बैकएंड पे इंटीग्रेशन हो रखा है, सिस्टम को पता चल रहा है। वो कॉमर्स से एक एपीआई कॉल हुई, वो कॉमर्स ने गोक्विक को बताया बैकएंड से कि भाई ये ऑर्डर कैंसिल मार्क कर दिया गया है, अपने पास भी कैंसिल कर दीजिए मार्क। तो एपीआई कॉलिंग से वो हो गया। इसी तरीके से ऑर्डर जब प्लेस होता है और फेलियर हो जाता है तो बैकएंड पे एपीआई कॉल जो होती है उसको हम रीट्राई करेंगे 3 टाइम्स के लिए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन या फीचर जो यहाँ पे दिख रहा है। कैप्च, क्योंकि होता क्या है ना, ऑर्डर फेल हो गया तो हो सकता है यूजर वहां से ड्रॉप करके चला गया, अब आपका तो लॉस हो गया ना एक तरीके से, एक तो मर्चेंट लूज हुआ आपके लिए। कैप्चर बिलिंग डिटेल्स, किसी का बिलिंग डिटेल्स कैप्चर करके रखना है तो दैट अगेन यू कैन डू इट। किसी का एडिशनल यूजर डिटेल्स हैं, फील्ड्स हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर ऑर्डर नोट्स अगर आपको कस्टमाइज करना है, जैसे बैनर कस्टमाइजेशन हो गया, या फिर कुछ एडिशनल नोट्स चाहिए ड्यूरिंग द चेकआउट, तो वो आप कर सकते हैं। बैनर्स मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हैं। बैनर्स देखिए कुछ नहीं होता, मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। बैनर्स ये होता है कि नोटिस किया होगा आपने, किसी के चेकआउट में आप जाएंगे ना, तो आपको एक पतले रिबन में, एक बहुत थिन रिबन में आपको शो करता है कि फ्री शिपिंग अबव 999, फ्री शिपिंग अबव 299, समथिंग लाइक दैट, ऑफर्स, वैलेंटाइन ऑफर्स, कुछ इस तरह से चल रहा है, तो उस तरह का आपको दिखता है। फिर एमएस क्लैरिटी, ये बेसिकली ऑड रिकॉर्ड यूजर जर्नी के लिए, दिस इज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट। एडिट मेंबरशिप इन कार्ड, अलाउ यूजर्स टू ऐड और रिमूव मेंबरशिप्स डायरेक्टली फ्रॉम कार्ड बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म सपोर्ट। तो ये डिपेंड करता है मेंबरशिप है नहीं है, तो आगे इसको हम आगे स्किप करते हैं। अगेन आई वुड से अगर आपके इस सिस्टम पे ये सब ना दिखे तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। इन्वेंट्री वैलिडेशन इनेबल्स इन्वेंट्री चेक वाया प्लेटफॉर्म एपीआईज। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपने इन्वेंट्री अपडेट नहीं की, प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट वो प्लेस हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, बट वो इन्वेंट्री में अवेलेबल ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल। सो इस तरह का सिनेरियो ना क्रिएट हो तो यू कैन कीप दिस ऑप्शन एज enabled. Shipping flow selection, choose between legacy shipping logic or optimize shipping flow. फिर पिन कोड सर्विसेबिलिटी चेक, validates delivery availability based on pin code from merchant system. So ये सब आप इनेबल डिसेबल रख सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो इस टर्म्स के बेसिस पे, क्योंकि ये नया ही टर्म कॉइन हुआ है हमारे एंड से, तो कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन रेज अ टिकट टू अस, यू कैन आस्क अस डायरेक्टली, वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन दीज लाइक इन फॉर दीज टर्म्स, ठीक है। पेमेंट बटन थीम कैसा रहना चाहिए? डिफॉल्ट रहना चाहिए, प्राइमरी रहना चाहिए? शिपिंग प्राइस बेसिस, शिपिंग प्राइसिंग टाइप डायनेमिक रहे, फिक्स्ड रहे? एस्टिमेटेड ईडीडी कॉन्फ़िगरेशन, शिपिंग इन्फो टेक्स्ट, ये आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, क्विक ऑफर्स के अंदर आप यहाँ से भी सेम चीज कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इंटीग्रेशंस पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशंस में लॉयल्टी एंड वॉलेट है, गिफ्ट कार्ड वाउचर्स है, क्विक सिल्वर है, गिफ्टर है, ट्विड है, नेक्टर है। एड एनालिटिक्स, अगर मेटा का कुछ ऐप यूज करने वाले हैं, GA4 गूगल एनालिटिक्स यूज करने वाले हैं, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर अगर वेबबुक्स यूज करना चाहते हैं, वेबबुक्स देखिए जैसा क्या आता है, जैसे मैंने एपीआई की बात की ना, तो वेबबुक भी एक तरह का रिवर्स एपीआई है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब एपीआई का मतलब है कि सिस्टम हमें बता रहा है, जिस सिस्टम से इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से एक सिस्टम इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो वेबबुक भी इस तरीके से रहता है कि उसी सिस्टम, उसी इंफॉर्मेशन को कुछ रिवर्स में आंसर करना वेबबुक हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए आप कुछ व्हाट्सएप एपीआई सर्विस यूज कर रहे हैं, मार्केट में मल्टीपल व्हाट्सएप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। अगर कोई कार्ट अबेंडन किया, जैसे मान लीजिए कार्ट अबेंडन हुआ, तो वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस तो बता देगा कि ऑर्डर बीच में ही छूट गया, प्लेस नहीं हो पाया। तो अब सामने वाला गोकुल कैसे बताए व्हाट्सएप मैसेज पे कि उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, तो वो वेबबुक के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। आप कस्टमाइज कीजिए और यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिए। यूआरएल कौन देगा? जो व्हाट्सएप सर्विस आपका प्रोवाइडर है, एपीआई प्रोवाइडर, वो आपको यहाँ से यूआरएल दे देगा। आप उससे मांगेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ शेयर करेंगे, और यहाँ से आप एंटर करके और उसको आप सेव कर सकते हैं, तो वो ट्रिगर होना व्हाट्सएप पे चालू हो जाएगा। अगर अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप एपीआई प्रोवाइडर, तो आप हमारा क्विक एंगेज यूज कीजिए। अगर आप हमारा व्हाट्सएप मैसेजेस यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास क्विक एंगेज की सर्विस अवेलेबल है, आप उसको अवेल कर सकते हैं।
और आप क्विक एंगेज, बस डिपेंड करता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, अगर वो मैच कर रहा है, आप उसके अंदर फॉल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन अवेल अवर क्विक एंगेज सर्विस। ठीक है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ रहेगा तो वी कैन हेल्प यू आउट। तो आप क्विक पेमेंट्स में आ जाते हैं। क्विक पेमेंट्स में देखिए, सॉरी, क्विक चेकआउट में एक एनालिटिक्स में आपको समझाना रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। एनालिटिक्स देखिए, मैं आपको अगर देखूं यहाँ पे आप आएंगे तो बहुत ही सिंपल एक फॉर्मेट में हमने दे रखा है। चेकआउट कन्वर्जन रेट, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल ऑर्डर्स कितने हुए, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू, चेकआउट कन्वर्जन, एड्रेस प्रीफिल्ड, प्रीपेड परसेंटेज, इन डिटेल आपको लास्ट 7 डेज का दे रखा है। उसी तरीके से आपका चेकआउट कन्वर्जन रेट भी दे रखा है कि चेकआउट इनिशिएटेड, एड्रेस स्टेप रीच्ड, एड्रेस पेमेंट स्टेप रीच्ड, पेमेंट मेथड सेलेक्टेड और सेशंस कन्वर्ट। ये जो डार्क नेवी ब्लू और स्काई ब्लू दो कलर में दे रखा है, तो नेवी ब्लू इज बेसिकली लास्ट वीक, एज इन जो चल रहा है करेंट 7 डेज, एंड जो स्काई ब्लू है दैट इज प्रीवियस टू दैट वीक। तो दो कंसेक्यूटिव वीक्स का कंपैरिजन आपको यहाँ दिखता है, विच विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर चेकआउट रेशियो। ठीक है। फिर सेशंस विद प्रीफिल्ड एड्रेस, अगर प्रीफिल्ड एड्रेस मेरा 100% है, दैट मीन्स कि मेरे रेपिटेटिव यूजर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू न्यू यूजर्स, करेक्ट। फिर बिजनेस मैट्रिक्स, टोटल ऑर्डर्स सीओडी लेवल पे, प्रीपेड लेवल पे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू सीओडी लेवल पे, ऑल के प्रीपेड के कितने हैं, फिर टोटल सेल्स कितना दिख रहा है आपको सीओडी प्रीपेड लेवल पे। फिर मार्केटिंग मैट्रिक्स, अगर आपको यहाँ पे देखना है यूटीएम सोर्स डायरेक्ट है या और कोई सोर्स के थ्रू आ रहा है, लैंडिंग पेज के थ्रू आ रहा है। डिस्काउंट यूसेज ट्रेंड, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको पूरा इन डिटेल अपने लेवल पे देख सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन लगता है तो यू कैन अगेन रीच आउट टू अस। पेमेंट मेथड स्प्लिट आपको सेल्स काउंट लेवल पे, प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट, टॉप डिस्काउंट्स फेल्ड। देखिए, अगर सेशन थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिलैक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टम में कि कोई कॉम्प्लिकेशंस है, बस यही है कि आपको डैशबोर्ड अगर अच्छे से समझना है तो डैशबोर्ड डेली ऑन अ डेली बेसिस आप एक पेज पे रहिए, अपना बस टाइम स्पेंड कीजिए एक पेज पे, डेली का डेली। खुद ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि ओके, ये डेटा आया, अब ऐसा दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, कल ये डेटा था आज ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कल चेंज हो गया तो क्यों हुआ। सो इट्स टोटली फाइन, वेरी सिंपल, वेरी यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड टू अंडरस्टैंड। कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहली बार में लग सकता है कि बहुत सारी चीजें, बट ऐसा है नहीं। ठीक है। सो मैं जहां जहां पे फास्ट हो रहा हूँ उसका एक और ये भी रीजन है कि दैट इज वेरी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। द ओनली थिंग इज कि फेमिलियर नहीं है आप डैशबोर्ड से या होंगे, तो दैट इज वाई थोड़ा सा लग सकता है कि डिफिकल्ट है, बट ऐसा है नहीं। प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट आप ऑर्डर काउंट सेल्स के लेवल पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टॉप डिस्काउंट्स फेल्ड, कुछ डिस्काउंट हैं आपके कूपन जो इनवैलिड हो गए फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से, तो इनवैलिड आपके कूपन दिखते हैं। कोई डिस्काउंट कूपन जो बहुत यूज हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट उसका दिखता है। ठीक है। अबेंडेंट कार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, अबेंडेंट कार्ट का कैसा सिस्टम रहता है मैं आपको बता देता हूँ। अबेंडेंट कार्ट अगर मैं जाऊँ 30 डेज का डेटा उठा के देखूँ, तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि कितने, 50, मैं 7 डेज का देख लेता हूँ। ठीक है। कार्ट अबेंडन हुआ, किस स्टेज पे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप ऑफ स्टेज क्या है, एड्रेस लिस्टिंग पेज पे हुआ कि पेमेंट लिस्टिंग पेज पे हुआ। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई यूजर है, जैसे यही यूजर मान के चलते हैं, यही ऑर्डर अबेंडन हो जाता है और आपसे वो मांगते हैं कि मुझे पेमेंट लिंक भेज दीजिए, मुझे पेमेंट करनी है, तो ये क्विक लिंक जो दिख रहा है ना आपको, इसी को आप कॉपी करके भेज सकते हैं, डायरेक्टली यूजर कार्ड के पेज पे पहुंचेगा और वहीं से वो पेमेंट इनिशिएट कर देगा। ठीक है। आ, तो वो आप इनिशिएट कर देगा, तो आप यहाँ से पेमेंट उनसे करा सकते हैं अगर कोई यूज़र ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, व्हाट्सएप मैसेज तो आप ट्रिगर करने ही वाले हैं, तो उनको तो वैसे भी वो लिंक जाने वाली है अगर आप व्हाट्सएप सर्विस यूज़ करेंगे। तो अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं फॉर द टाइम भी, तो आप मैनुअल कॉल करके भी ये लिंक यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं, दे विल बी एबल टू मेक द पेमेंट डायरेक्टली, क्योंकि वो कार्ड पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है। आई थिंक वी शुड take a pause for 1 or 2 minutes. In the meantime, Nelson, can we share that form with the merchants? श्योर उत्कर्ष, वी कैन डू दैट। मैं बस Q&A सेक्शन में, चैट सेक्शन में सॉरी, अभी फॉर्म कर रहा जी। हूँ, एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द मर्चेंट्स जस्ट फिल इन दैट फॉर्म। हाँ हाँ, एक बार क्यूएनए सेक्शन एक बार प्लीज चेक कीजिए, वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, दैट प्लीज प्लीज डू फिल दैट फॉर्म, बिकॉज वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है हमेशा। हम उसके बेसिस पे
we can improve our sessions. आप अपना feedback share कर सकते हैं, that would be really helpful. So please take a pause and एक बार fill करके please confirm in the Q&A section की form fill हो गया, and then we can go ahead for further. ठीक है, just give me a moment ना.